Assalamu alaikum students. Let's start with lab number 7. After a long gap, we are going to start our labs. Just because we do not studied switch case statements, so now we already studied the switch case statements. So basically, the lab number 7 is designed by you have to use the decisions as well as the loops, and in the task you have to use the switch case. Right now you didn't study the switch case, but in coming class we are going to cover up the switch case. So by this way we are going to complete the lab number 7. But let's start the demonstration of this lab. So if you have any query you can ask me in the lecture. uh, let's read first the objective of the lab, then later we will study the small briefing about the tutorial of lab, and later we will make a source code in the Dev C++ compiler. So the objective of the lab 7 is uh, create a menu by using do while loop. Okay, so you have to create a menu. What kind of menu? It's a menu about perform basic calculation. So you have to make a menu of the basic calculation, which is means addition, subtraction, multiplication, divisions, by using decision of, it means if else. Like you have to create a menu and then perform basic calculation by using the decisions if else. It means you have to choose one thing at a time. Either you have to choose addition, either you have to subtraction, either you have to choose calculation, and so on. Okay. Then in the last, recall the menu until the user wants. Okay. So once the program has been completely run, it doesn't like stop. It will ask again from the user, do you want to continue about the program, and do you want to do more addition, subtraction, multiplication. So if user said yes, then you have to repeat the program. So in this particular program you have to use the loop, which is the do while loop, and the if else conditions. Okay, so this is the main objective of this particular course or lab. Then you will definitely learn about the do while and if and else statements. Already I taught you in the theory that do while it works like you have to start with a do, and the while comes in the end, and it after while the decision will become along with the terminator. Okay, so if the condition is false for the first time, but still the statement which is cout, seen, or whatever the other information, any formula, will be execute at least once. सही ना? तो do while जो है वो हमेशा हमेशा एक दफ़ा ज़रूर रन होता है until or unless यानी मीन्स कि अगर कंडीशंस फॉल्स ही क्यों ना हो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सिक्यूट एट लीस्ट वंस. Decision is somehow a similar thing like a loop, but in decision it will execute only once if the condition is true. सही है ना? if के अंदर क्या होता है, वो कंडीशन चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. सही है. फॉर एग्जाम्पल हियर्स एन एग्जाम्पल इज गिवन कि इफ x इज इक्वल्स टू 100, यानी मीन्स कि इफ योर वैल्यू ऑफ x इज 100 देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू, अदरवाइज दिस कंडीशन नेवर बी ट्रू. ओके. In case of condition is true, then this particular cout will be execute like x is equals to 10 will be print on the screen. If this x is not equals to 100, then this statement is never be print. Okay. Similarly, if you have more than one statement of cout in a particular if condition, then you have always required curly brackets. In a curly bracket open, curly bracket close will be required. And same thing will be applied here, that in case of condition is true, both will be execute. If the statement is false, then both will be false, do not execute. Okay. Come towards down, then we have the if condition as well, like with if there is a else condition. So in if the if condition is false, ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी प्रिंट. जो भी स्टेटमेंट नंबर 2 होगी वो प्रिंट हो जाएगी. इट डू नॉट चेक द कंडीशन अगेन इन द केस ऑफ एल्स. सही है ना? इन केस ऑफ इफ इस कंडीशन इज ट्रू, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो एल्स की तरफ जाएगा ही नहीं प्रोग्राम आपका. ठीक है. तो इस तरह से इफ एंड एल्स विल वर्क. सही ना? else if is another thing, that if you have more than two condition, whenever you have the more than two condition, you always will use else if statement, and it will require the test condition as well. Okay.
टेस्ट कंडीशन चाहिए होगी आपको, और इसके अंदर यू हैव यूजिंग मोर देन वन चॉइसेस टू चूज विच वन इज द करेक्ट वन. ओके, you have to write pseudo code by yourself by seeing this particular code. सही ना. सबसे पहले आपने इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है. सही है. Once you have implemented this code, then you can going to write the pseudo code by yourself here. सही है. अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपने इसका आउटपुट लिख देना है, जो भी इसका आउटपुट जनरेट होगा इस पर्टिकुलर कोड का, एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू लर्न इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. Just copy paste this particular code in your compiler. I try my best to type the whole code by myself, so you can easily understand how you're going to perform this particular objective. Okay, so to perform this particular objective, I'm going to move towards the compiler and just copying the objective of this particular lab. So it must be in front of me during the making the source code of this particular program. Okay, so let me start here. Divide into multiple lines, so it will become in one page, otherwise it is a bit difficult to read by moving the conditions. Okay, so this is my objective, create a menu by using do while loop. यूजुअली जो डू वाइल लूप होता है उससे हम मेन्यू क्रिएट करते हैं, यानी फॉर लूप जो होता है या वाइल लूप जो होता है वो यूजुअली मेन्यू क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं होता. मेन्यू क्रिएशन मीन्स कि प्रेस 1 टू डू दिस, प्रेस 2 टू डू दिस, प्रेस 3 फॉर डू दिस. सही है ना. इस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, मेन्यू बनाते हैं. सही ना. किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे भी एक मेन्यू होता है. तो सिमिलरली राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग अ स्मॉल मेन्यू अबाउट टू परफॉर्म द बेसिक कैलकुलेशन. सही है. अच्छा, लेट मी चेक आई हैव यूज anything else other than addition, multiplication and subtraction. So here is addition, subtraction, multiplication, division, and last one is the generator table. Okay, fine. Let's go back towards the source code writing. Again we have required include IO stream header file for input and output. मैं यहाँ पे कमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा अपने कोड में कमेंट्स को ज़रूर लिखें. द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. इस तरह से मैं पहले कोड को ना बना लेता हूँ. दिस इज़ माई पैटर्न बिकॉज इट विल हेल्प मी टू रिमूव द एरर एज मच एज पॉसिबल. सही ना. ये सेंटेंस तो हमें हर प्रोग्राम में चाहिए ही चाहिए. सही है ना. जो हमारी लास्ट लैब होगी उसमें भी हमें ये सेंटेक्स चाहिए होगा. ठीक है. तो इस सेंटेक्स को मैं पहले से ही टाइप कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में कोई ब्रैकेट्स की या कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, उसकी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. लेट मी सेव एज वेल द लैब. इसको सेव भी कर लेते हैं ताकि कोड हमारा ज़ाया ना हो. स्पेशली उन स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ कि जिनके घर में अगर लाइट जाती हो ना और उनके पास लैपटॉप ना हो, सिस्टम पे काम कर रहे हो और यूपीएस ना लगा हुआ हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो होगा वो लॉस हो सकता है. तो व्हेन एवर यू टाइप अ लिटिल बिट कोड यू मस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन. सही ना. इधर यू क्लिक ऑन द सेव बटन. यार एक दफ़ा मैं सेव कर चुका हूँ तो इस वजह से हाईलाइट नहीं हो रहा. जैसे मैं मॉडिफिकेशन करूँगा तो सेव बटन इनेबल हो जाएगा. सही ना. कंट्रोल एस दबा दें. सही ना. कंट्रोल एस का भी ऑप्शन है. या फिर अगर कंपाइल के बटन पे भी आप क्लिक करते हैं ना तो वो प्रोग्राम को पहले सेव कर लेता है. F9 दबा दें. ठीक है. अच्छा, definitely we have to declare the variables first. So right now what we are doing कि हम लोग दो इंटीजर वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेंगे. सही है. और उसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. और एक हमें ना एक हम करेक्टर ले रहे हैं कि अपने डू वाइल के लूप को कंटिन्यू करने के लिए. अब डू वाइल के लूप में फॉर द फर्स्ट टाइम हम करेक्टर को यूज़ करेंगे एज ए इनपुट कि वो हमें बताएगा कि हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना है या नहीं करना है. ठीक है. तो उसके लिए आई थिंक लेट्स टेक अ फ्लोटिंग वैल्यूज़ बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ द डिवीजन. सही ना. आई एम गोइंग टू यूज़ लाइक A and B.
वेरिएबल्स, इस तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया। कैरेक्टर वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज इज ओके। सो लेट्स टेक एनी वेरिएबल, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू टेक सी एज अ कैरेक्टर वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो पूरा प्रोग्राम है वो पहले मेन्यू क्रिएट करना है, उसके बाद फिर उसमें हमने फंक्शंस परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें यहीं से ही डू का लूप हमें रिक्वायर्ड हो जाएगा, सही ना। डू का लूप शुरू होगा और उसकी हमें बॉडी चाहिए होगी वाइल, सही है ना। अब वाइल लिख के फिर फर्दर इसके अंदर एक कंडीशन आएगी, उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल कंटिन्यू इट इन दिस, सही ना। राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग द कंडीशन, कि अभी मुझे कंडीशन का आइडिया नहीं होगा कि क्या कंडीशन है, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अब जो भी मैंने प्रोग्राम लिखना है वो डू वाइल की बॉडी में लिखना है, सही ना। तो इस तरह से आप ये बॉडी क्रिएट कर लेंगे ना, तो आपको इसमें ना एरर नहीं आएंगे इतने, सही ना, यानी एरर फ्री आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सी आउट हमारा जो पर्पस है, यानी मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, सही है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि लेट सपोज के पुट सम डॉट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे लिख दें कैलकुलेटर, सही है। फिर इसी तरह स्पेस देके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने ये दे दिया, ठीक है। हैंडल लगाना ज़रूरी है ताकि हमारे पास जो अगला आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, सही ना। एक जैसा खूबसूरती के तौर पे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सी आउट। फिर उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ कि सी आउट एंटर, लाइक या लिखता हूँ कि लेट सपोज के प्रेस 1 टू ऐड चलें 2 नंबर्स, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। यानी प्रेस 1 वब करना है जब आपने 2 नंबर्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर सकूँ, सही है ना। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसमें ये गलती ना करिएगा कि सेम सेंटेंस को ही आप एग्जीक्यूट करवा दें, उसको चेंज ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर प्रेस 2 वब हो जब सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, सही है। प्रेस 3 मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, सही है। 4 डिवाइड 2 नंबर्स एंड 5th जो हमने टेबल जनरेट किया था, सही है ना। इसके अंदर हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो मेन्यू क्रिएट करना है उसके अंदर हमने डू वाइल का लूप यूज़ करना है। हम डू वाइल से ही टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन फॉर लूप इज़ अ बिट ईजियर, सो वी कैन यूज़ फॉर लूप। तो ये मेरा एक मेन्यू क्रिएट हो गया, सही ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यूज़र से पूछना है कि भाई अब ये तो वो था प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन ना, यानी मीन्स अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन इसमें स्टार्ट की नहीं है, ठीक है। ये हमने अपना डेटा डिफाइन कर दिया है कि हमने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो दिस इज़ आवर मेन्यू, सही ना। ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर है जिसका हमने अपना मेन्यू बता दिया, सही है। उसके बाद फिर आप अगर चाहें कि एक लाइन का फर्दर गैप आए तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइन का और यहाँ पे एंडल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ना आपने एक और एंडल यूज़ कर लिया, तो इस तरह से एक मोर स्पेस के साथ आपके पास नीचे जो आउटपुट होगा वो जनरेट होगा, सही ना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि एंटर योर चॉइस, सही है। और चॉइस में लेट सपोज के चॉइस के लिए, क्योंकि चॉइस सी से स्टार्ट होता है, तो मैं फ्लोट के अंदर सी ले लेता हूँ। यहाँ पे सी ले लिया मैंने, सही है। और यहाँ पे मैं कोई और वेरिएबल लेट सपोज के डी ले लेता हूँ, सही ना, डी ले लेता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सी इन चॉइस। अब इस पार्टिकुलर कोड में हुआ ये कि ये मेरे पास मेन्यू है, 1 to 5 का ऑप्शन है, सही है ना।
और उसके अंदर मैंने ये लिख दिया कि जी अब इसमें से आपने कोई चॉइस सेलेक्ट करनी है, सही है ना, कि अगर आप इसमें से चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो वो काम परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास आएंगी इफ़ स्टेटमेंट, सही ना, इफ़ की स्टेटमेंट्स आएंगी। वो क्या कि इफ़ सी इज इक्वल्स टू 1, इसकी मैं बॉडी क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरे पास इसका अपना एक प्रोग्राम हो, सही ना। अब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता लैब जो है हमारी काफ़ी लेंदी होती चली जाएगी, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि हम लोग जो लैब परफॉर्म करते हैं वो किस तरह से करते हैं, सही ना। कंप्लीट सोर्स कोड में अगर एक्सप्लेन करने लग जाता तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इस वजह से इस वीडियो को आप आराम आराम से देखिएगा, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए रिपीट द वीडियो, और अगर स्टिल क्यूरी क्लियर ना हो यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन, ठीक है। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट में क्या है कि सी इज इक्वल्स टू 1, सी इज इक्वल्स टू 1 से मुराद कि अगर यूज़र जो है वो सी के अंदर 1 प्रेस करे तो इसका मतलब है सी की कंडीशन ट्रू हो जाए, और सी की फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि ऐड 2 नंबर, सही है ना। सो डेफिनेटली फर्स्ट यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, सो यू हैव टू राइट एन स्टेटमेंट के प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, इस तरह से लिख दिया। कुछ भी लिख दें आप इसके अंदर, इट्स अप टू यू, कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सी इन, हमने ऊपर वेरिएबल जो डिक्लेयर किए थे क्या किए थे, ए एंड बी। सी वेरिएबल इज रिजर्व फॉर द चॉइस, सही है, और ए वेरिएबल और बी वेरिएबल इसमें हम इनपुट ले रहे हैं, सही ना। इनपुट आप एक ही सीन, आपने क्या किया कि सीन लिखा, एक्सर्शन के साइन लगाए, ए लिखा, एक्सर्शन के साइन लगाए, बी लिख दिया, सही ना। तो आपने अब पहला इनपुट आपका ए के अंदर आएगा, सेकंड इनपुट आपका बी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट एक ही लाइन में ले सकते हैं, और सिंपली आप यहाँ पे लिख दें कि सम ऑफ 2 नंबर्स, इक्वल का साइन लगाना चाहें इक्वल का साइन लगा दें, और यहाँ पे बजाय इसके कि आप एक और वेरिएबल क्रिएट करें और उसमें a प्लस बी करें, सही है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी भी लिख सकते हैं, सही ना, इट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसमें बस ये होगा कि a और b की जो कंबाइन वैल्यू है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू अपनी जगह बरकरार रहेगी, b की वैल्यू अपनी जगह बरकरार रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यूज़ को कोई चेंजिंग नहीं परफॉर्म होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि एक वैल्यू स्टोर हो तो देन डेफिनेटली यू हैव टू डिक्लेयर अनदर वेरिएबल एंड देन स्टोर इन दिस पार्टिकुलर, कंबाइन देम एंड स्टोर एंड देन प्रिंट इट, सही ना। तो इस तरह से ये मेरा एक पहला इफ़ का चेक जो है वो कंप्लीट हो गया, सही है ना। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मुझे 5 चेक्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि इसमें मुझे डेफिनेटली इफ़, एल्स इफ़ और आखिर में एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम जो होगा वो एंडिंग की तरफ जाएगा, सही है। सो वंस यू हैव गेट दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स, लाइक यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स एफ की स्टेटमेंट, सही ना, एल्स एफ की स्टेटमेंट, और अब लिखूँगा यहाँ पे सी इक्वल्स टू 2, इस तरह से, सही। और इसकी अपनी बॉडी आ जाएगी। अब इसकी बॉडी बनाना मेरे लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, मेरा काफ़ी हद तक काम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, वही ए बी के अंदर भी इनपुट लूँगा, क्योंकि जब भी मैं इनपुट लूँगा मेरे पास पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंस लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस आ गया मेरे पास। फिर इसी तरह फिर मैं इस पूरी बॉडी को ही कॉपी कर लेता हूँ। जब भी आप कॉपी पेस्ट करें तो मेक श्योर कि आपने उसमें डेटा मॉडिफाई करना ज़रूरी है, सही ना, वरना फिर एरर फाइंडिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अब थर्ड चॉइस, सही ना, थर्ड चॉइस में मैंने क्या कहा है कि प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, सही ना, तो मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, स्टेरिक का साइन आ जाएगा, इस तरह से। ये देखें कितनी जल्दी मैंने कोड जो है वो कन्वर्ट कर दिया, सही है। और नो, मैंने देखें गलती कर दी कि मैंने
गलत जगह पे मॉडिफिकेशन कर दी है, तो लेट मी करेक्ट। सो इस तरह की मिस्टेक हो जाती हैं कोडिंग के अंदर, सो मेक श्योर कि आप इस तरह की मिस्टेक ना करिएगा, सही है ना। इसको मैं यहाँ पे पहले अपडेट कर लूँ। Subtraction, डिफरेंस, ओके। और फिर हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन था, आखिरी तो नहीं, खैर सेकंड लास्ट ऑप्शन है कि इफ़ एल्स अगर इसकी वैल्यू 4 हो तो हमने डिवीजन परफॉर्म करना है, सही ना। डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, डिवाइड का साइन आ गया, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। और आखिर में जो एल्स है हमारा, सही है ना। अच्छा, अब देखें कि मैं आखिर में ना एल्स आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास आखिरी टॉपिक जो है मेरा जो टेबल जनरेट का है, सही ना। टेबल जनरेट करना है तो एल्स मैं लगा दूँ तो टेबल जनरेट हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज से अगर मैं 10 एंटर कर दूँ, मैं -5 एंटर कर दूँ, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यू क्या होगी, टेबल की होगी, सही ना। तो वो टेबल जनरेशन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आखिरी वाला एल्स होगा ना, उसके अंदर मैं ये लिखूँगा कि अगर आपने 1 से लेके 5 तक की चॉइस सेलेक्ट नहीं की, तो इसका मतलब है आपने चॉइस गलत सेलेक्ट की है। तो डिफ़ॉल्ट विच इज़ एल्स, तो उसमें वो स्टेटमेंट लिखी जाएगी। तो स्टिल आई एम यूजिंग हेयर इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट, सही ना। एल्स इफ़ इस उस वक्त तक चलता चला जाता है जब तक कि आपकी कंडीशंस पूरी की पूरी फुलफिल ना हो जाए, सही ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5। अब यहाँ पे प्लीज़ एंटर टू नंबर नहीं होगा, प्लीज़ एंटर अ नंबर, क्योंकि टेबल के लिए हमें एक सिंगल नंबर चाहिए होता है, सही ना। एक सिंगल नंबर चाहिए होगा, तो इस तरह से एक सिंगल नंबर आ जाएगा। फिर मैं ए के अंदर ही ले लेता हूँ, इट डजेंट इफेक्ट, क्योंकि मुझे हर दफ़ा इनपुट लेना है, तो मैं कोई भी वेरिएबल ए ले लूँ, कुछ भी ले लूँ और उसमें इनपुट ले लूँ, सही ना। अच्छा, फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी मेरी, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट। बल्कि इससे पहले, सी आउट से पहले एक लूप लेना पड़ेगा मुझे। लेट सपोज फॉर का लूप ले लेते हैं, इट विल बी क्वाइट ईजियर टू डू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट ये आ सकता है कि ए की जो टाइप है वो फ्लोट है, और जो मेरा लूप है वो मैं इंटीजर में ले रहा हूँ, सही है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग आएगी, सही ना। तो इन केस के अभी इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। इफ़ इट इज़ डिटेक्ट एन एरर, देन लेटर आई विल चेंज द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट वेरिएबल, सही ना। तो इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक हमारे जो टेबल जनरेशन की जो स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, इसके नीचे कोई और स्टेटमेंट नहीं है, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली इसके फर्दर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, सही ना। अगर आई आपका ऊपर डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ तो आप यहाँ पे INT करके डिक्लेयर कर सकते हैं, सही ना। दिस इज अनदर मेथड। तो हमारे पास जो टेबल जिसका हमने जनरेट करना है वो है A, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास यूजुअली क्या आता है, क्रॉस आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगा दें, स्टैरिक लगा दें, इट्स अप टू यू, स्पेस दे देते हैं, सही ना, ताकि स्पेस के साथ वैल्यू प्रिंट हो। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर यहाँ पे हमने इक्वल का साइन प्रिंट करना है, एंड देन हेयर इज ए मल्टीप्लाई बाय आई और ऑलवेज लाइन चेंज। इस तरह से ही हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा। फिर सबसे आखिर में फिर हमारे पास एल्स आ जाएगा। एल्स में चूंकि हमारे पास एक सिंगल स्टेट में हम लिखेंगे कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, यानी मीन्स कि आप बता रहे हैं कि आपने जो चॉइस एंटर की है वो गलत है, विच मीन्स कि अगर आपने 1 से 5 तक की वैल्यू एंटर नहीं की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो होगा वो ये आएगा कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आ रहा है हमारी वाई की एंडिंग, सही ना।
इस वाइल की एंडिंग में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका मैंने शुरू में आपको बताया था कि रिकॉल द मेन्यू अंटिल द यूज़र वांट्स, सही है ना। तो इसमें अब आपने ये लिखना है कि सी आउट डू यू वांट्स टू कंटिन्यू प्रेस y और n, सही है। सी इन हमने जो वेरिएबल क्या लिया था, डी लिया था ना, एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं ऊपर, बिल्कुल करेक्टर के लिए हमने डी वेरिएबल लिया है। अच्छा, फिर उसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी डबल इक्वल्स y और डी डबल इक्वल्स कैपिटल Y, सिर्फ कैपिटल Y हम लेंगे, सही ना। यानी मीन्स कि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र जो है यहाँ पे या तो स्मॉल y या कैपिटल Y प्रेस करता है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, सही ना। इस कंडीशन के ट्रू होने पे प्रोग्राम वापस वहाँ चला जाता है जहाँ से डू स्टार्ट होता है, सही ना। तो यहाँ से डू स्टार्ट हुआ तो प्रोग्राम आपका वहाँ पे दोबारा चला गया, सही है ना। प्रोग्राम वहाँ पे दोबारा चला गया तो आपने रीस्टार्ट कर देना है इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को, ठीक है। तो और अगर आपने एन प्रेस किया तो डेफिनेटली बोथ कंडीशन विल बी फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। दोनों फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी मीन्स के दोबारा से री एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही है। लेट्स सी, इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं। हमारे नज़दीक ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। इन केस की कोई एरर आता है तो उसको हम देखते हैं कि किस किस्म का एरर आ रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, सही ना। कंपाइल किया सक्सेसफुली तौर पे, एरर नो वार्निंग, सही ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई सिमेंटिक एरर नहीं है। लॉजिकल एरर स्टिल हो सकता है। लॉजिकल एरर का मतलब ये कि जब हम आउटपुट चेक करेंगे तो उसके अंदर अगर हमारे पास कोई आउटपुट सही नहीं आ रहा तो उसका मतलब है वो लॉजिकल एरर हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन हम चेक करते जाएंगे कि आया कि ये एग्जीक्यूट सही कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखें, अब जो इसके ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है इस तरह से, ये जो मैंने डॉटेड लगाए थे, सही ना। इसको आप कम भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये आगे को जा रहा है, सही ना। तो 10 डॉट्स की बजाय आप 6 डॉट्स ले लें, शुरू में 6 डॉट बाद में ले लें। सो इट्स अ लाइक ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर, सही है ना। अच्छा, अब ये देखें कह रहा है कि एंटर अ चॉइस, सही ना। एंटर अ चॉइस यानी मीन्स के अब मुझे या तो मैं प्रेस 1 करूं, इन सब ऑप्शंस को हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसी भी ऑप्शन में हमारे पास कोई मसला आ रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, सही है। 1 का मतलब ये है कि मैंने एडिशन परफॉर्म करना है। एक मैंने 5 एंटर कर दिया, एक मैंने 9 एंटर कर दिया, और उसके बाद क्या आया कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 14, ठीक है ना। तो मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद ये इफ़ की सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करता हुआ सबसे नीचे वाली स्टेटमेंट पे आ गया और उस पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। अब हमें ये भी चेक करना है कि अगर मैं वाई प्रेस करता हूँ तो इसको मुझे दोबारा से मेन्यू दिखाना चाहिए। तो मैंने जैसे ही वाई प्रेस किया तो उसने मुझे वाकई में दोबारा से मेन्यू दिखा दिया। कैलकुलेटर का वही मेन मेन्यू दोबारा से स्टार्ट हो गया। और अब मैं करता हूँ प्रेस 2, सही है। मैंने प्रेस 2 किया। अब मुझे कह रहा है कि एंटर 2 नंबर्स, तो मैंने 17 और 7 लिख दिया तो उसने मुझे डिफरेंस 10 शो कर दिया। तो स्टिल दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, सही ना। अगेन मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ। इस दफ़ा मैं कैपिटल वाई प्रेस करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है। कि वाई प्रेस किया तो उसने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। 3 प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे 3 देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 देता हूँ तो 3 5 सा 15 बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। उसके बाद फिर फर्दर नीचे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 15 दिया और 5 दे दिया तो डिवीजन इज़ 3 बिल्कुल सही दे रहा है, सही ना। फ्लोटिंग नंबर में है तो इसको फ्लोटिंग नंबर भी हमें देना चाहिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि फ्लोटिंग नंबर में वो हमें आउटपुट दे रहा ही नहीं दे रहा। लेट्स सपोज दिस इज़ चॉइस 4 चॉइस को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ
20 मैंने लिया और यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो 6.6667 बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे दे रहा है। ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, आखिरी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, सही है ना। मैंने लिखा 5 और इसमें मैंने लिखा है कि जी 4 का टेबल जनरेट कर दो, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 10 ज़ा 40, 100% बिल्कुल करेक्ट उसने टेबल जनरेट कर दिया। हमारे डेटा टाइप से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ, सही है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6। अब 6 लिखने पे देखें क्या आ गया, यू एंटर अ रॉन्ग चॉइस, ये एल्स वाली स्टेटमेंट, सही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 1 से लेके 5 तक का है, तो हमें 1 से लेके 5 तक ही चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना था। अगर आप 6 देंगे तो ये एंटर अ रॉन्ग चॉइस कहेगा, सही है ना। इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। लेट सपोज के मैं 100 देता हूँ और 100 में फिर मुझे वही कह रहा है कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, सही ना, यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, ये आप देखते रहें अपने सामने, सही है। इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ और अब मैं देता हूँ -4, सही है ना, चॉइस में मैंने दिया -4 और अगेन ये कह रहा है यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, सही है। इसको दोबारा प्रेस वाई करता हूँ, 0 एंटर करता हूँ, यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। इट मीन्स इट ओनली वर्क्स बिटवीन प्रेस 1 2 3 4 5, 1 to 5 अगर आप देंगे तो ये फर्दर आपको पूछेगा कि वैल्यू एंटर करूँ ना करूँ, और जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। इन दी एंड जब आप प्रेस कर देंगे n, सही ना, n करेंगे, एंटर करेंगे, नाउ योर प्रोग्राम हैज़ बीन स्टॉप्ड, सही ना, प्रोग्राम आपका अब स्टॉप होगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर कंप्लीट लैब, सही है। तो इस तरह से ये आपकी लैब जो है वो कम्प्लीटली तौर पे परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, सो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ट्राई टू मेक दिस लैब बाय योर सेल्फ, डू नॉट कॉपी पेस्ट डायरेक्टली, सही है ना। ऑल्दो के कोड इज़ विद यू, लैब नंबर 7 का ये पूरा कोड है, सही ना। हो सकता है कि मेरे हिसाब मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल लिए हैं वो चॉइस के नाम से लिया, num1 लिया, num2 लिया, डिफ़ॉल्ट, सही है ना। तो मैं जब अपनी लैब परफॉर्म करता हूँ तो हो सकता है कि वेरिएबल्स का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ और किसी भी डिफरेंट नेम में स्टोर कर सकता हूँ, सही है ना। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तथा कि किस तरह से लैब जो है परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे आप देखें मैंने करली जो राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, राउंड ब्रैकेट्स लगा दें ना लगाएं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कितना, 2 नंबर में कितना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंडल नहीं लिखा, इट्स ओके, क्योंकि मेरे पास एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, इससे भी इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम लाइन में आउटपुट आ जाए तो डेफिनेटली एंडल लगा लें, सही ना। तो मैं एहतियातन आमतौर पे एंडल अब लगा लेता हूँ, सही है। यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि इंट आई जो है वो लूप के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है और आई इज़ लेस देन 11 लिखा हुआ है, सही ना। आई इज़ लेस देन 11 लिखें, आई इज़ लेस देन एन इक्वल टू 10 लिखें, दोनों की बात बराबर होती है। ठीक है, फिर रॉन्ग चॉइस लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें यानी मीन्स की कम्प्लीटली ये प्रोग्राम हुई है। और यहाँ पे देखें कि मैंने सिर्फ स्मॉल वाई को लिया हुआ है, अगर यहाँ पे कैपिटल वाई देंगे तो कैपिटल वाई को ये फॉल्स करार दे देगा, क्योंकि इसमें आपने चॉइस में नहीं रखा हुआ, जबकि जो मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पे करवाया है तो उसके अंदर मैंने दोनों ऑप्शन कराए, क्योंकि और गेट में आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है ना। आउटपुट इसका जिस तरह मैंने जनरेट करवाया, इतना सारा आउटपुट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 चॉइसेस का आउटपुट लिख दें, उससे आइडिया हो जाएगा। वरना अगर इस तरह से ये जो मैंने आउटपुट जनरेट किया था इस प्रोग्राम में, सॉरी मैं ख़ुद में बंद हो गया, तो वरना इट इज़ टेक अ वेरी लॉन्ग थिंग, सही ना। और इसी तरह फिर आप जो है उसमें कंक्लूजन्स लिख देंगे कि जो आपने लर्न किया। ये देखें इस दफ़ा जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट 63 ऑफ लाइन्स, सही है, 63 लाइन्स पे ये कोड जो है वो पूरा बना है, सही। तो इस तरह से आप देखते जाएं कि आपका जो कोड की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ टास्क के ऊपर। टास्क में इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। और आपने इसको सिर्फ अभी समझ लेना है और उसके बाद फिर इसको आपने अप्लाई करना है अपनी लैब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि क्रिएट अ मेन्यू ऑफ बॉडी मास ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी मास इंडेक्स बाय यूजिंग डू वाइल लूप एंड फाइंड आउट द रिजल्ट्स बाय यूजिंग डिसीजंस स्विच केस, सही ना। स्विच केस अभी हमने पढ़े नहीं है, आप इस प्रोग्राम को इफ़ की कंडीशन से भी बना सकते हैं, सही ना। और मैं ये रिकमेंड करूँगा
कि आप लोग इसको इस तरह आप लोगों ने इफ़ पढ़ा है तो इसको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इफ़ के अंदर बनाएं, सही है ना, इस प्रोग्राम को इफ़ में बनाएं। जब वंस इट इज़ मेड इन द इफ़ एल्स कंडीशंस सो इट इज़ इजीली बी कन्वर्ट इनटू द स्विच केस। इसको हम स्विच केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक और टाइप है स्विच डिसीजंस के, सही है ना। इसको हम लोग स्टडी आउट करेंगे अपने इस कमिंग वीक में। तो इसको आप इफ़ एल्स की कंडीशन में ही बनाएं, लेकिन वो टास्क की हैसियत नहीं होगी, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, सही है ना, ताकि आपको इफ़ एल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जब आप टास्क परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर, जब बाकायदा लैब परफॉर्म करेंगे तो इसको स्विच कैसे करेंगे, रिकॉल द मेन्यू अंटिल द यूज़र वांट, सही ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल बायोमेडिकल रिलेटेड एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं, सही है। अब आपने देखें कि इसके अंदर जिस तरह हमने प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन किया था, यहाँ पे आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि बॉडी टेम्परेचर, सही है ना। तो मेन्यू जो आप क्रिएट करेंगे उसमें आएगा कि प्रेस 1 टू फाइंड द बॉडी टेम्परेचर या एंटर द बॉडी टेम्परेचर, सही है, एंड प्रेस 2 फॉर बॉडी मास इंडेक्स, सही ना। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि आप उसके अंदर अपना हाइट और वेट एंटर करते हो और वो आपको ये बता देता है कि यू आर अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट एंड सो ऑन, सही ना। इसको भी हम स्टडी आउट कर लेते हैं इसको डिटेल में, सही है। इसका हिंट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सही है ना, कि लेट सपोज कि अगर आप जो यूज़र है वो प्रेस 1 करता है तो उसका मतलब है उसने बॉडी टेम्परेचर को लेना है, सही ना। आपने बॉडी टेम्परेचर एंटर कर दिया। वंस यू हैव एंटर्ड द बॉडी टेम्परेचर तो आपने इफ़ एंड एल्स के अंदर, ऑल्दो कि ये तो स्विच केस में होना है जो आप फाइनल अपनी लैब बनाओगे, लेकिन इसको आपने अभी स्विच केस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते, वो इफ़ एल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर टेम्परेचर लेस देन 100 है, सही ना, यानी मीन्स कि एक तो वही है कि फ़ारेनहाइट में लेना है, सही ना, फ़ारेनहाइट में लेना ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अगर लेस देन 100 आ रहा है तो आपने आउटपुट में बता देना है नो फीवर, सही है। 100 से 102 के दरमियान आ रहा है तो कह देना है फीवर है। 102 से ज़्यादा है और 104 से कम है तो हाई फीवर, और 104 से ज़्यादा है तो टू हाई फीवर, सही है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपको इफ़ की कंडीशंस में और गेट या एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं नहीं बता रहा कि इसमें एंड गेट लगाना पड़ेगा या और गेट लगाना पड़ेगा, या आपने खुद से सोचना है, ठीक है। खुद से सोचना है, खुद से देखना है कि यार अगर मुझे कंडीशन ये वाली लगानी है कि अगर कोई कहता है कि 103 बुखार है, सही है, तो उसके लिए आपको ये वाली चॉइस को करेक्ट करना है, बाकी सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी। तो इसके अंदर एक रेंज दी हुई है कि 102 से ज़्यादा, सही है ना, यानी 102.1 जो है वो इस रेंज में आएगा, 102 जो है वो फीवर वाली रेंज में आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें अपने पास। बॉडी मास इंडेक्स के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, सही है। एक फार्मूला कहलाता है हमारा विच इज़ कॉल्ड द इंग्लिश BMI फार्मूला, इम्पीरियल फार्मूला, इन विच वी आर गोइंग टू टेक वेट इन पाउंड्स, सही है, एंड हाइट इन इंचेस, सही है। तो मेक श्योर इस फार्मूले को ज़रा ध्यान से इनपुट करिएगा कि इसमें क्या हो कि वेट इन पाउंड्स इंटर हो, हाइट इन इंचेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस का मतलब है हाइट इन इंचेस का स्क्वायर, सही है ना। तो उसमें स्क्वायर को हम क्या करते हैं आमतौर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू से। ये चीज़ सबसे पहले आपस में सॉर्ट आउट होंगी, ये आपस में पहले वो इसका स्क्वायर निकलेगा, फिर ये पाउंड की वैल्यू इससे डिवाइड होगी, वंस इट इज़ डिवाइडेड एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 703 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो फिर आपका BMI आ जाएगा। सिमिलरली वेट इन किलोग्राम, सही है, और हाइट इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स। तो इसमें ये कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये डिवाइड होंगे। सो मेक श्योर यू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स। मैं आमतौर पे क्या करता हूँ कि इन फार्मूले को ना पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करवा देता हूँ, सही ना। इफ़ यू एबल यू कैन डू इट, लाइक हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, ज़्यादातर वेट जो होता है वो किलोग्राम में लेते हैं और अपनी जो हाइट होती है वो फीट और इंचेस में लेते हैं, सही ना, फीट एंड इंचेस में रहते हैं। तो इंचेस क्या होते हैं कि वो फिट होते हैं कि 12 फिट जो होता है वो 12 इंचेस 1 फिट के बराबर हैं, सही ना। तो यू कैन कन्वर्ट बाय योर सेल्फ एंड like develop your own formula by using these both of them, सही है ना। तो अगर हो सके तो आप ये करें कि वेट इन किलोग्राम यूज़र से इनपुट लें, हाइट जो है ना फीट और इंचेस में लें, सही ना, फीट और इंचेस में हाइट लें। तो उसके बाद फिर इसमें से कोई भी एक फार्मूले की इक्वलेंट उस वैल्यू को कन्वर्ट करके और आउटपुट जो है वो जनरेट करवाएं, ठीक है। अच्छा,
अब आपका अगर BMI जो है, लेट मी open the like web to if some of you don't know about the what is the BMI, so I would like to read some definition of the body mass index, सही है ना। तो इसकी definition में थोड़ी सी रीड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोल लें, सब वेबसाइट्स पे तकरीबन इसकी डेफिनेशन एक अच्छी दी हुई होगी, सही है ना। सो डेफिनेशन इज़ बॉडी मास इंडेक्स इज़ अ पर्सनस वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन द मीटर्स। High BMI can be indicator of high body fatness. BMI can be used to screen for weight category that may lead to health problem but is not diagnosed for the body fats or health of the individuals and so on, सही ना। तो उसकी जो पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कराए हैं इसके ऊपर टास्क के अंदर, ठीक है। तो आप इस टास्क को भी देख लीजिएगा, सही ना। इतना डिटेल में नहीं यार, आप खुद नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ना आइडिया ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो लेट सपोज कि जब आपका BMI की वैल्यू 15 से कम आए तो आपने उसका आंसर देना है कि वेरी सर्वली अंडरवेट, यानी बहुत ज़्यादा आप सर्वली अंडरवेट हो, ठीक है। अगर आपका BMI आता है 15.0 से लेके या हाँ 15.0 से लेके 15.99, अगेन इट्स अ फ्लोटिंग वैल्यूज़, तो इसका आपने ये आउटपुट देना है। अगर 16 से लेके 18.49 के बीच में आता है तो अंडरवेट, 18.5 से लेके 24.99 आता है तो नॉर्मल वेट, सही ना। तो दीज आर द रिजल्ट्स that has been display when the BMI result come in this particular range, सही ना। तो इसमें अगेन स्विच केस या इफ एल्स की कंडीशंस के थ्रू आप ये काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ दो ऑप्शंस दिए हैं, एक बॉडी टेम्परेचर का और एक BMI का, ताकि आप ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करें। लैब देखें, इफ़ की लैब देखें, सही ना, इफ एल्स की लैब देखें, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद इस कोड को भी पहले इफ़ एंड एल्स में इम्प्लीमेंट कर दें, अपने पास कंप्यूटर में सेव रखें। उसके बाद जब मैं स्विच केस कराऊंगा तो उसको स्विच केस में टास्क को परफॉर्म करके फिर आप जो है मुझे ना लैब सबमिट कराएंगे, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर लाइव सेशन जब हमारा होगा तो आप उसमें भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क वाया ईमेल एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर लैब।